Assalamu alaikum everyone and welcome to another level of your spoken English class. आज हम लोग prepositions के ऊपर बात करेंगे. Prepositions में you guys can see on the screen you have in, on, at. These three words we use to join the sentences, we use to complete the sentence structure you can say. और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले words हैं. So we can say that the prepositions are often known as the prepositions of time. The key is to move from general to more specific when we use these prepositions. These three are the main words that are known as prepositions and which are used in our everyday life. Okay, let's continue. So in is basically used for the general term. लाइक आप कुछ जनरल बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग इन यूज करेंगे. ऑन इज यूज्ड इन यू कैन से क्वाइट जनरल टर्म, लाइक इतना भी स्पेसिफिक नहीं होगा बट इट विल बी यू कैन से अ लिटिल बिट मोर, you can give more importance to on in some words. And the word at is used specifically when you have to say something, like when you have to define something. आगे जाके हम लोग सारी examples करते हैं and you will understand after that. Okay, let's talk about in first. So कुछ examples हैं जिस तरह you can say in the past or in the future. ठीक है, ये कुछ examples हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें I'll just make a sentence for you and you will understand. In the future, I would like to become a lawyer. So this word in, this is basically the preposition which is used in the sentence structure. यानी कि अब future के अंदर कोई बात हो रही थी, ये future में कुछ होगा. So you can say कि जैसे ही in लगा future के साथ तो पता लग गया, या you can say it was more like defined that what will happen in the future. This person will become a lawyer in the future. You cannot use on the future or at the future. So यहाँ पे in is the main key, कि in will be used with the word future. Next, we have in is also used to talk about years. जैसे कि any year you can say, like example में लिखा हुआ है 1988. Or let's have some examples. In the 90s, in the 20th century, and in the year 1992. You cannot say or in 1992. ये भी एक sentence structure हमारे पास ठीक है, लेकिन if I use in the year 1992, then it will be more defined. हमारा जो sentence structure है, that will be more prominent, and the person whoever you're talking to या जिसको आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत accurately ये सब कुछ समझ आएगा. Okay, let's have some examples. I was married in the year 1991. अब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था कि I was married in 1991. Sentence structure वो भी ठीक होना था. So keep this thing in mind कि अगर हम लोग in the year की बजाय सिर्फ लिख देते in 1991, that would have been correct as well. लेकिन you can say कि एक proper sentence structure जो हमारा बन रहा है वो in the year 1991 बनेगा. Similarly, we have another example. This book was released in the late 20th century. अब इन यहाँ पे फिर इस्तेमाल हुआ है, और in the late 20th century was more, you can say, defined. उस पे sentence structure हमारे पास ज़्यादा complete sentence में नज़र आएगा. Like I could have said, this book was released in 20th century. Sentence हमारे पास वो भी ठीक होना था, लेकिन क्योंकि I wanted to be a little bit more specific, more detailed, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, ये मैंने ये लिख दिया कि इन द लेट 20th सेंचुरी. वाई? बिकॉज एक सेंचुरी 100 years की होती है. नाउ इफ आई वुड हैव रिटन इन 20th सेंचुरी, तो ये किसी भी पर्सन को क्लियर नहीं होना था कि 20th सेंचुरी में कहाँ पे. अर्ली 20th सेंचुरी,
मिड 20th सेंचुरी और लेट 20th सेंचुरी. सो उसको देखते हुए I chose to write in the late 20th century. Okay. Okay. Next, in is also used to talk about the seasons, like in the summer or in autumn, in spring, in winter, या in winters, you can say. Plural भी आ जाता है इसके अंदर. Example के अंदर है in winter, there is snow all across the city. अब यहाँ पे in winter, in the winter नहीं कह सकते हम लोग. Why? Because फिर हमारा वो sentence structure, it will not be the exact same like we want to be, like with you can say complete good grammar. So I will say in winter there is snow all across the city. और क्योंकि हम लोगों ने एक pause दिया है थोड़ा सा, so that's why I gave a comma over here. Similarly, we have an example. In summer, my city is just like a volcano. अब यहाँ से volcano is like not in literal sense volcano. हम लोगों ने इसको थोड़ा सा एक डिफाइन करना था या इसको कंपेयर करना था कि समर में बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है. उसकी वजह से my city becomes a volcano. Yeah, you can say my city is just like a volcano. Okay. And in is also used to talk about months and weeks. Like in July, in a few weeks. In few weeks भी हो सकता है, लेकिन in a few weeks is a complete sentence structure. और इसकी examples अब हम लोग देखते हैं. In July, he will be here. In July, then we have a comma. Why? Because we have stopped for a little second, maybe, or half a second. And then I have completed my sentence. He will be here. या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, the other way around. He will be here in July. ये एक complete sentence बन जाना था जिसमें कोई stoppage नहीं आनी थी और आपको comma लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी. But I wrote in July in the beginning. Why? Because I wanted to give more, you can say, pressure on this word. क्योंकि July is the main key in our sentence over here. ये हम लोग आप कह सकते हो कि we are more giving the importance to this word. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी portray कर सकते हैं. Similarly, जिस तरह यहाँ पे इस sentence में in a few weeks मैंने end पे लिखा है. अब यहाँ पे sentence क्या बनेगा? Hopefully the government will change in a few weeks. Alright? तो यहाँ पे in a few weeks आ गया बाद में. Why? Because my main key in this sentence is the government. तो उसको मैं पहले लेके आना चाहता था. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि जब कभी भी you guys will be using abbreviations. Abbreviations is like government के पूरे spelling होते हैं GOVERNMNENT. Okay? But if I want to use abbreviation anywhere, यानी कि short form में लिखना चाहता हूँ, तो whenever you have to write the abbreviation, you have to give a full stop over here. This will define that this is the abbreviation, and whoever is reading this will understand that this is an abbreviation और इसका full form क्या होता है. You can also say कि आप लोग अपनी मर्जी से abbreviations नहीं बना सकते. Abbreviations properly जिस sentence या जिस word की चाहिए होती हैं वो बनी हुई होती है. So you have to follow that, and then you can write the abbreviations. Okay. Okay. Next, in we have in is also used to talk about the part of days. Ab days mein I'm not talking about Monday, Tuesday, Wednesday. I'm talking about in the afternoon, or you can say in the evening. यहाँ पे हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो sentence structure हमारे पास बनेगा, we will not be using afternoon first and then in. Why? Because that will not be grammatically correct. एंड वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास उस तरह से कंप्लीट नहीं होगा. तो इसमें आपको इन दी या इन आपको पहले लगाना ही पड़ेगा. ठीक है, दैट इज यू कैन से कंपल्सरी फॉर यू व्हेन यू विल बी यूजिंग इट फॉर द पार्ट ऑफ डेज. सिमिलरली इन द इवनिंग, लाइक इवनिंग आप पहले नहीं लगा सकते हो, इवनिंग आपको बाद में ही लगाना पड़ेगा. एंड इन यू हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट. सो फॉर दैट पर्पस आपको इसको बिगिनिंग में लगाना पड़ेगा. Let's have an example. In the morning, I like to go on a walk.
ठीक है। इसमें इन हमारे पास पहले आ गया, सो दैट मीन्स कि हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया इन द मॉर्निंग में। आफ्टर दैट आई सेड आई लाइक टू गो ऑन अ वॉक। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास ऑपोजिट भी हो सकता था कि आई कुड हैव रिटन आई लाइक टू गो ऑन अ वॉक इन द मॉर्निंग। उसमें फिर ऑब्वियसली इन हमारे पास शॉर्ट में आना था, लोअर केस में आना था, आई जो है उसका स्मॉल आना था, बट सेंटेंस स्ट्रक्चर उस तरह भी ठीक होना था। और यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा पॉज देना है तो यू कैन ऑल्सो यूज अ कॉमा, बट ओवर हेयर यू जस्ट लिसन टू माई वॉइस। इन द मॉर्निंग आई लाइक टू गो ऑन अ वॉक। देयर वॉज नो स्टॉपेज in between my sentence. This was one whole complete sentence. So for that purpose, I did not use any comma over here. अगर आपने stoppage देना होता तो फिर आप यहाँ पे comma लगा देते। उसमें क्या होना था, this sentence would have been broken into two parts. और यहाँ पे in the morning would have been more focused. But इसमें as such इतनी कोई ख़ास importance नहीं थी इस sentence से related. That's why मैंने इधर comma नहीं लगाया, ठीक है। सो ए प्रपोजिशन में हमारे पास इन कंप्लीट हो गया, और इन इज लाइक यू कैन से यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, लाइक जनरल टर्म्स के अंदर अगर आपने यूज करना है तो हम लोग इन यूज करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड ऑन राइट नाउ। अब ऑन हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ पे वी हैव टू बी little bit more than general, but it is also general. So you can say it is quite general, not 100% specific, but more than general. Okay. On is used to talk about the dates, like on his birthday or on the 5th of February. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह पे dates आ रही हैं, like birthday or the specific date, which is 5th of February. ठीक है, let's have it in the example. On the 5th of Feb 1991, he was arrested. Now, there are three things that you need to look at. First of all, on came first. हम लोगों ने on को यहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल किया। On के बाद हमारे पास आई date, which is the 5th of February. अब यहाँ पे मैंने abbreviation यूज़ की है, Feb, और उसके बाद have a look, I use this full stop over here. Why? Because this was an abbreviation and I wanted whoever is reading to specify कि ये एक abbreviation इस्तेमाल हुई थी ताकि वो इसका full form automatically बना ले. And then 1991, which is also the date. And after that, I gave a little bit of pause. For that reason, मैंने यहाँ पे comma use कर लिया. और उसके बाद फाइनली जो मेरा फाइनल सेंटेंस कंप्लीशन थी, he was arrested. I chose that. अब हम इसको the other way round भी इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे he was arrested on the 5th of Feb 1991. This would have been correct as well. लेकिन I chose to use this sentence structure. बाकी it will be up to you. आप लोग इसका sentence structure किस तरह से use करेंगे. Second, we have on his birthday, he got married. Now, on his birthday, and then comma, which means I gave, you can say half second gap. And then I completed my sentence, which is he got married. Let's continue. On is also used in holidays, which includes day. Now, have a look over here. I highlighted the word day. क्योंकि it's not like a specific, you can say 5th of February, ठीक है, or 5th of March or anything like that. यहाँ पे day means like Pakistan Day, or you can say Independence Day, or any other day, Iqbal Day, maybe for that matter, New Year's Day. यहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, या जो specific days हैं हमारे पास जहाँ पे you can say official gazetted holidays होती हैं, or maybe any Remembrance Day, Iqbal Day, Qaid-e-Azam Day, anything like that, वहाँ पे we use on. Let's have a look at it with the example.
everything will be closed on Pakistan Day or Independence Day, you can say. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान डे हमारे पास एक स्पेसिफिक डे है, एक गजेटेड हॉलीडे है, उसमें हम लोग ऑन इस्तेमाल करेंगे. सिमिलरली देयर विल बी 50% ऑफ ऑन न्यू ईयर्स डे, यानी कि न्यू ईयर्स डे के ऊपर 50% ऑफ मिलेगा. अब 50% ऑफ इज द मेन की ओवर हेयर विच इज स्पेसिफाइंग कि इस सेंटेंस में हम लोग ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है. लेकिन उसके साथ साथ न्यू ईयर्स डे एक डे हमारे पास आ रहा है जिसकी वजह से हम लोगों ने ऑन के साथ इसको इस्तेमाल किया. ओके, नेक्स्ट, ऑन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डेज ऑफ द वीक. अब यहाँ पे वो डेज आ गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. आप लोग वहाँ पे जब यूज़ करोगे तो हम लोग ऑन इस्तेमाल करेंगे. वी कैन नेवर से इन ट्यूसडे, इन थर्सडे. वी विल ऑलवेज यूज ऑन थर्सडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन मंडेज. लेट्स हैव अ लुक इन द एग्जांपल. ही विल पिक मी अप ऑन ट्यूसडे इवनिंग. ठीक है, या फिर आप इसको द अदर वे अराउंड भी कर सकते थे. ऑन ट्यूसडे इवनिंग ही विल बी पिकिंग मी अप. अब वहाँ पे पिक की जगह पिकिंग हो जाएगा. वाई? बिकॉज हम लोगों ने उसकी जो ग्रामर है उसको हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर यू कैन से एज वेल कि उसको कंप्लीट करना है. दैट्स वाई इट विल बी लाइक दिस. सिमिलरली लेट्स हैव अ लुक एट द अदर एग्जांपल. वी विल विजिट यू ऑन फ्राइडे इवनिंग. ठीक है, यहाँ पे भी ऑन फ्राइडे आया है, इन फ्राइडे नहीं आया या एट फ्राइडे नहीं आया. सो ये वाला प्रपोजिशन हम लोग डेज के साथ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट वी हैव एट. नाउ एट इज यू कैन से वेरी स्पेसिफिक. जिस तरह मैंने आप लोगों को बिल्कुल बिगिनिंग में भी बताया था. लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन. एन इज स्पेसिफिक. ठीक है, यानी कि आपने कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो उसके अंदर हम लोग एट इस्तेमाल कर रहे होंगे. एट द मोमेंट, or you can say at 5 o'clock or at dinner. Now in 5 o'clock या on 5 o'clock नहीं कह सकते हम. अब 5 o'clock एक बहुत स्पेसिफिक हमारे पास टाइम आ गया है, तो उसको जब हम लोगों ने डिफाइन करना है तो that will be used with the word at. Let's have a look in the example. What are you doing at the moment? और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो I placed a question mark over here, or maybe you can say see you at dinner. अब डिनर हमारे पास एक क्वाइट स्पेसिफिक वर्ड आ गया है कि यू कैन से इट इज़ डिफाइंड दैट व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम वी ऑल विल बी हैविंग द डिनर, और दैट फैमिली और दैट स्पेसिफिक पर्सन विल बी हैविंग डिनर. तो उसको जब हम लोगों ने एक सेंटेंस के अंदर लेके जाना है, ग्रामेटिकली उसको कंप्लीट करना है, तो वी विल बी यूजिंग द प्रपोजिशन एट ओवर हियर. ओके, next, at is also used in holidays but without day. अब यहाँ पे I have highlighted without. ठीक है, जिस तरह at इकबाल डे और you can say at कश्मीर डे, ये हमारे पास एक बहुत स्पेसिफिक टाइम आ गया है. वो जब हम लोग इन यूज़ कर रहे थे, ऑन यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास डेट्स आ रही थी. जैसे आई सेड 5th of February. ठीक है, उसमें डेट्स आ रही थी. बट यहाँ पे हमारे पास इकबाल डे आ रहा है, हमारे पास कश्मीर डे आ रहा है. इस तरह से जो भी आप लोगों ने डेज को डिफाइन करना है उसमें हम लोग एट इस्तेमाल कर रहे होंगे. लेट्स हैव अ लुक इन द एग्जांपल. वी ऑल आर गोइंग टू मरी एट इकबाल डे. यानी कि जिस वक्त इकबाल डे आएगा उस वक्त हम सब मरी जाएंगे. ठीक है, इसको you can also use at the other way around. At इकबाल डे we all will be going to Murray. फिर will be going हमारे पास आ जाएगा. Similarly, our office is off at कश्मीर डे. कश्मीर डे पे हमारे ऑफिस को ऑफ मिला हुआ है. अब यहाँ पे there is one more thing grammatically अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि ऑफ में अगर आपने इस तरह का ऑफ यूज़ करना है कि जिसमें यू कैन से स्पेसिफाई हो रही है कोई हॉलीडे, तो उसमें सिंगल एफ वाला ऑफ नहीं आएगा. देयर विल बी ओ डबल एफ ऑफ. ओके, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. ऑलराइट,
दीज वर द प्रपोजिशंस जो इन, ऑन, एट, अब आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ इस्तेमाल होना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं होना। देयर इज़ वन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, हम सब करते हैं, अक्सर मैं भी कर जाता हूँ कभी कभार, विच इज़ द यूज़ ऑफ हैज़ बिन, हैव बिन एंड हैड बिन। We don't, you can say, specifically use it where we have to. जहाँ पे have use होना होता है वहाँ पे हम लोग has use कर देते हैं, या have use कर देते हैं, या had use कर देते हैं। have been के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि it is used for plural nouns like I, you, we, they. Over here we use have been. Okay. अब वी और दे जब ये वर्ड्स आ जाते हैं तो दिस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज द वर्ड कि यहाँ पे एक से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों के बाद, लाइक मोर देन वन पर्सन वी यूज दे और वी। ठीक है, क्योंकि अगर एक सिंगल पर्सन होता तो वहां पे तो नॉर्मली मी आ जाना था। ठीक है, लेकिन अगर वी आएगा तो यू गाइज नो वेरी वेल that we is like for more than one person. अगर दो लोग भी होंगे तो उनके लिए भी we इस्तेमाल हो रहा होगा, not me. Let's see in the example. You have been, they have been, the boys have been. यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, the boys have been. ठीक है, अब यहाँ पे just have a look. प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, बॉयज, और मे बी ओवर हियर यू कैन से दे। तो यहाँ पे हम लोग हैव बिन इस्तेमाल कर रहे होंगे, नॉट हैज बिन, नॉट हैव बिन। ओके, सॉरी, हैड बिन। सिमिलरली हैज बिन हमारे पास कहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा? दिस इज बेसिकली जस्ट सिंपल ग्रामर कि जब हम लोगों ने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखना है कि जो हमारी ग्रामर है उसका सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो रहा होगा। सो हैज बिन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर, यू कैन से, सिंगुलर नाउन्स लाइक ही, शी, इट, वी यूज हैज बिन। इसकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग यू कैन से कि आपको याद करने का तरीका ये है, हैज में एस आता है, राइट? हैव में HAVE आता है और हैड में D आता है। सो वी हैव हैज बिन जिसमें सिर्फ S आ रहा है, और सिंगुलर में भी S आता है, यानी कि सिंगुलर भी स्टार्ट होता है S से। सो वेन एवर यू हैव टू यूज अ सिंगुलर थिंग तो आपको ये याद होना चाहिए कि सिंगुलर स्टार्ट्स विद S। सो मुझे यहाँ पे S वाला यूज करना है ग्रामर, जो कि है हैज बिन। तो इस तरह से भी आप लोग कंफ्यूजन से बच जाओगे एंड यू गाइज विल यूज हैज वेयर इट्स नीडेड। So it has been or she has been. Now she is singular. Similarly, it is also singular. यानी कि कोई it इस्तेमाल होता है जब you can say for any animal or for a non-living thing. हम लोग किसी animal के लिए ही नहीं इस्तेमाल कर सकते. We will always be using it. और similarly जब कोई एक non-living thing है उसके लिए अगर आपने उसको स्पेसिफाई करना है, इफ़ यू नीड टू यूज़ दैट थिंग इन योर सेंटेंस, तो उसके लिए भी इट इस्तेमाल हो रहा होगा। सो वहाँ पे भी हम लोग सिंगुलर वाला या फिर यू कैन से हैज़ बिन इस्तेमाल कर रहे होंगे कि इट हैज़ बिन या शी हैज़ बिन इल फॉर पास्ट वीक, यू कैन से, और इट हैज़ बिन एजेस दैट वी हैव मेट। तो ये एक सेंटेंस अगर हम लोगों ने क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग हैज़ बिन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। Similarly, finally we have had been. अच्छा, had से ही आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये पास्ट के लिए यूज होगा मोस्टली, और यू कैन से 100% ऑफ द टाइम हम लोग had been इस्तेमाल कर रहे होंगे जब कोई चीज़ गुजर चुकी हुई है या पास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, और वो यूज होगा विद एनी सब्जेक्ट लाइक she had been और it had been। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस यूज करना है तो सेम, आई जस्ट रिपीट द सेंटेंस, शी हैड बिन इल फॉर 1 वीक। अब ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीमार है, तो उसके लिए पास्ट 1 वीक मैंने यूज किया क्योंकि दिस वाज हैड बिन ओवर हियर,
और had is like specifically used for the past. Okay. Similarly, it had been you can say किसी भी सेंटेंस में अगर आप इस्तेमाल करना चाहे पास्ट से रिलेटेड, तो आपने अगर अपना सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो वो आप हैड बिन के साथ करेंगे. ठीक है. आज के लेक्चर में वी वेंट थ्रू द prepositions. ठीक है. I'll just brief you once again. In, on, at. यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये these are the prepositions used और these are often known as the preposition of time. ठीक है, जिसमें हम लोग टाइम के साथ बात कर रहे होते हैं. इफ़ यू गाइज जस्ट गो थ्रू माई वीडियो अगैन, तो आप लोग ये नोट कीजिएगा कि ये जितने भी prepositions यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं ये यूज़ हुए हैं हमारे पास वर्ड टाइम के लिए. ठीक है, जिसमें पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट ये हमारे पास टाइम होता है. सिमिलरली ईयर्स जो हमारे पास 1988 था, या सेंचुरी था, 20th सेंचुरी था, 90s था, या ईयर 1992 आया, दिस वाज यूज्ड विद टाइम. हम लोगों ने जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है वो टाइम को देखते हुए कंप्लीट किया, तो ये प्रपोजिशंस हमारे पास वहाँ इस्तेमाल हो रहे होंगे. ऑटम, समर, स्प्रिंग, विंटर ये सीजन्स हैं, लेकिन ये भी हम लोग टाइम के साथ ही डिफाइन करेंगे, तो ये भी हमारे पास टाइम. सिमिलरली मंथ्स एंड वीक्स हमारे पास ये भी टाइम है, तो हम लोगों ने उसको भी स्पेसिफाई किया. पार्ट ऑफ डेज टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑन, अब यहाँ पे ऑन यू कैन से डेट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो डेट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स रिप्रेजेंटिंग द टाइम. ऑन हिज बर्थडे, या ऑन द 5th of March, ऑन द 5th of February, तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए प्रपोजिशंस इस्तेमाल हो रहे होंगे. और यहाँ पे डे भी इस्तेमाल होता है हमारे पास साथ ही साथ. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर कि डे भी हमारे पास एक टाइम के साथ ही रिप्रेजेंट हो रहा है, वहाँ भी ऑन इस्तेमाल हो रहा है. डेज ऑफ द वीक है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वहाँ इस्तेमाल होता है. एट is specifically for the time at the moment, at 5 o'clock or at dinner. तो ये हमारे पास you can say most common या most specific चीज़, अगर आपने किसी चीज़ को represent करना है तो वो आप लोग at के साथ represent करोगे. And it is also used without day, जिस तरह इकबाल डे, कश्मीर डे वगैरह है, तो उस तरह यूज़ होगा. Finally we went through has been, have been, had been, कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होंगे. और ये भी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो यू कैन से दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हमारे पास हैव बिन कहाँ इस्तेमाल होना है और हैज़ बिन कहाँ होना है. हैड इज़ वेरी कॉमन कि ये एक पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो जब कभी भी पास्ट की कोई बात हो रही है, प्रीवियसली यू कैन से सम थिंग्स हैव बिन डन, तो उसके लिए तो हैड इस्तेमाल होगा. हमारे पास जो मेन कन्फ्यूजन आती है वो हैज़ और हैव में आती है. इस चीज़ का अब आप लोगों को आई बिलीव के यू गाइस शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट, क्योंकि आई हैव स्पेसिफाइड कि प्लूरल नाउन्स के लिए हम लोग हैव बिन इस्तेमाल करेंगे, लाइक दे हैव बिन और द बॉयज़ हैव बिन. अब बॉयज़ में भी एस आ रहा है, दैट मीन्स इट्स प्लूरल, तो वहाँ पे हैव बिन इस्तेमाल हो रहा होगा. एंड हैज़ के लिए एज आई सेड बिफोर कि एस यहाँ पे इस्तेमाल होता है. सिमिलरली सिंगुलर में भी एस इस्तेमाल हो रहा होता है, तो दैट शुड बी रियली इजी फॉर यू गाइज टू जज. एंड रिमेंबर कि जहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ही, शी, इट इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों ने हैज़ बिन इस्तेमाल करना है. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू.